Hello, dear students. I am Dr. Reena Unyal Tiwari, working as an associate professor in the Department of Teacher Education at DAV PG College, Dehradun. Today, we are going to discuss about the psychosocial theory of development given by Erikson. This theory is considered both under the theory of child development as well as under the theories of development related in the personality. Erikson is known as the founder of ego psychology. अहम मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है. And his main interest was in how personal identity is developed in children, how the society helps in making the personal identity. So in his book, Childhood and Society, he explained the development which takes place in the whole lifespan of an individual. एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में जिस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, कैसे उसके स्व का विकास होता है और इस स्व के विकास में इस एक स्व की पहचान बनाने में समाज किस प्रकार से मदद करता है, उसमें उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में इसे बांटा है. And the whole lifespan development theory is divided into 8 stages. When we are talking about the main characteristics of psychosocial development theory, basically all individuals have same kind of basic needs. जब हम बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरतों की बात करते हैं तो वो मुख्यतः समान हैं. एक समान आयु में जब विकास हो रहा होता है तो जीवन की आवश्यकताएं भी समान होती हैं. जैसे जन्म के तुरंत पश्चात ये आवश्यकता जो है वो भूख की आवश्यकता, शरीर को भोजन की आवश्यकता, आराम की आवश्यकता, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, ये सब कुछ है. तो अलग अलग स्तरों पर अलग अलग स्टेजेस में आवश्यकताएं मूलतः एक समान होती हैं. अब ये जो बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को पाने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए किस तरह से एक व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि उसका ईगो या सेल्फ किस प्रकार से डेवलप होगा. And the development is completed by passing different stages. And Erikson has divided these into 8 stages. Formation of each stage is related to development taking place in prior stage. एक अवस्था में जो विकास हो चुका होता है, उसी विकास के आगे जो अवस्था है उसमें उससे फर्दर जो डेवलपमेंट है वो देखा जाता है. और हर स्टेज में जैसा वातावरण है, जैसी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, जिस प्रकार से सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करती है, उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स कैन बी सीन, बोथ आर प्रेजेंट इन इट. फॉर एग्जांपल, वी सी इन अ पर्टिकुलर एज व्हेन द चिल्ड्रन is being taken care of by the parents and the society, the relatives and the family. Along with it, for some of the works done by the child, he is scolded to and he feels very shy. तो न सिर्फ ये कि उसके विकास में कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं, बल्कि कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो कि नकारात्मक हो. दोनों ही प्रकार के फैक्टर्स, जो तत्व हैं, वो विद्यमान होते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था में. अब we see that when an individual is maturing and developing, along with the biological maturity, there is a lot of change in the day-to-day social needs. Now, how an individual is maturing physically, biologically, and the social needs, they give rise to a conflict in front of them. When there is a conflict, satisfactory adjustment leads to positive components in ego or self-development, and the personality development takes place in right direction. And if there are more negative components in the ego or self-development, so it results in the retarded development in later stages, which can lead to faulty personality development. विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति के सामने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं. सकारात्मक तत्व जो है वो उसको समाज के साथ, वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करते हैं और इससे व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में होता है. लेकिन यदि
नकारात्मक फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से जो विकास की प्रक्रिया है वो बाधित होती है, उन्हें अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में परेशानियां आती हैं और इससे उनके जो व्यक्तित्व का विकास है वो सही रूप में नहीं हो पाता। Whereas for the healthy development of personality, there should be a favorable ratio of positive and negative components. So for every stage of development, there are two kinds of factors responsible, positive as well as negative. If the ratio of positive factors is more, it leads to the healthy personality, a positive personality. Whereas in case of more number of negative factors affecting the development, then it leads to a faulty personality. We were talking about 8 different stages of psychosocial development as given by Erikson. Among this, the first stage is from birth to 1 year of age. And here the crisis is between trust and mistrust. जन्म के तुरंत पश्चात जो शिशु है उसे आवश्यकता होती है कि उसके आसपास परिवार के सदस्य रहें, माता पिता उसकी देखभाल करते हों, उसे प्रेम और स्नेह करें, उसके साथ साथ उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, वो भोजन की आवश्यकता है, वो मल मूत्र विसर्जन की आवश्यकता है, वो नींद की आवश्यकता है, वो पेरेंट्स के केयर की, उनके बॉडी टच की आवश्यकता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है तो उसमें विश्वास जन्म लेता है, ट्रस्ट। और यदि बच्चा लंबे समय तक भूख के कारण, गंदे वस्त्रों के कारण या नींद ना आ सकने के कारण रोता है, उसे रोता बिलखता छोड़ा जाता है, उसके आसपास यदि लोग नहीं होते, तो उसमें जिस प्रकार के इमोशन का डेवलपमेंट होता है वो है अविश्वास, मिसट्रस्ट। तो जो फर्स्ट स्टेज है साइकोसोशल डेवलपमेंट की, उसमें मूलतः जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। ओके, अब इसमें ट्रस्ट का फेवरेबल रेशियो हो, ट्रस्ट की मात्रा ज्यादा हो एज कंपेयर टू मिसट्रस्ट, अविश्वास की, तो इससे बालक जो है वो समायोजन कर देता है अपने आसपास के वातावरण पर और इससे एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे कहते हैं होप, आशा। जब बालक में विश्वास पैदा होता है तो उसे आशा बनी रहती है कि यदि मुझे कभी भी आवश्यकता होगी तो मेरे आसपास परिवारजन हैं, लोग हैं जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। The second stage of psychosocial development is from 2 to 3 years of age. And in this stage, as we all know, the child starts speaking. He starts walking too. छोटे छोटे कदमों से वो चलने लगता है, वो छोटे वाक्य बनाने लगता है, वो उन शब्दों को बोलने लगता है। अब उसे चाहिए कि मैं खेल भी पाऊं, मेरे पास खिलौने भी हों। अपनी उम्र के दूसरे जो बच्चे हैं वो उनकी तरफ भी आकर्षित होता है। अब वो केवल स्व केंद्रित ही नहीं है, वो बाकियों के साथ भी खेलने लगता है। एंड सम अदर स्पेशल फीचर्स व्हिच वी सी इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप, दीज आर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर मैच्योरेशन, which we see in the coordination of different body movements, walking, standing, as well as speaking some meaningful words. Along with it, the child starts socially discriminating. Now he can recognize the people who are known to him and the people who are unknown. जाने पहचाने और अनजाने लोग जो हैं वो उनमें फर्क करने लग जाता है। इसी के साथ साथ the power of speech starts. वर्बलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, शब्दों की अभिव्यक्ति आरंभ हो जाती है। तो यदि बालक को एक ऐसा वातावरण मिलता है जो कि फ्रूटफुल है, जो हेल्पफुल है, जिसमें वो अपने कार्य स्वयं कर सके। आपने देखा होगा कि बच्चा चाहता है कि अब मैं अपने वस्त्र स्वयं पहनूं, अब मैं अपना खाना स्वयं खाऊं अपने हाथों से, मैं जो वस्तुएं हैं, जो सामान है या जो खिलौने हैं उनको पकड़ूं। यदि उसको इसके लिए सकारात्मक वातावरण मिलता है, द क्वालिटी ऑफ ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता जो भाव है वो विकसित होता है और उसके साथ साथ आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जो है, दैट इमोशन ऑल्सो डेवलप्स। बट as compared to autonomy, if we see there is a change, there is a different scenario in the upbringing of the child,
द चिल्ड्रन हु आर कंट्रोल्ड बाय देयर पेरेंट्स कि आप ये करो, आप ये नहीं करो, तुम क्या उठा सकते हो, नहीं तुम कपड़े अपने आप नहीं पहन सकते, आपको हम ही खिलाएंगे। एंड व्हेन ही स्पिल्स द फूड, वो कुछ गिरा देता है, उसके हाथ से कुछ टूट जाता है, तो ही इज स्कोल्डेड बाय द पेरेंट्स, है ना, जब उसको डांट फटकार मिलती है और उसके ऊपर नियंत्रण जो है वो परिवारजनों का ज्यादा होता है, तो उससे जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, दीज आर द फीलिंग्स ऑफ शेम एंड शाइनेस। शर्म जो है वो उसको आती है कि मुझसे ये काम नहीं हुआ, मुझसे ये काम गलत हो गया, मैंने अपने वस्त्र जो है वो गंदे कर दिए हैं। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, इसमें जो क्राइसिस उत्पन्न होता है वो क्राइसिस होता है स्वतंत्रता और उसके साथ साथ शर्म का जो भाव है उसमें उसको लज्जा आने लगती है। और इस अवस्था में बेसिकली हम ये कहते हैं कि आत्मनियंत्रण के गुण का विकास यदि ना हो, स्वतंत्रता के गुण का विकास यदि ना हो, तो आपको उसमें लज्जाशीलता का जो भाव है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ये एक साइकोसोशल क्राइसिस है। इफ वी सी द फेवरेबल रेशियो बिटवीन ऑटोनॉमी एंड शेम, favorable ratio means that autonomy positive factors are more as compared to the factors which lead to shame। नेगेटिव फैक्टर्स अगर कम होते हैं तो इससे एक साइकोसोशल पावर का डेवलपमेंट होता है जिसे कहा जाता है विल पावर, इच्छा शक्ति। यदि बालक को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें माता पिता उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसे अपने कार्यों को अपने ढंग से करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, उसे एक ऐसा वातावरण देते हैं कि जिसमें वो अपने शरीर के ऊपर, अपने द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर, अपने द्वारा कहे गए बातों के ऊपर नियंत्रण स्वयं कर पाता है, तो इससे उसमें इच्छा शक्ति जो है उसका जन्म होता है। The third stage starts from the age of 4 years। 4 वर्ष की उम्र से आरंभ हो जाती है ये अवस्था और ये 4 से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक चलती है। ये तीसरी अवस्था है मनोसामाजिक विकास की। And here the crisis is between initiative versus guilt। As we can see from the age of 4 years, the child starts going to the pre-KG schools, kindergarten schools में क्योंकि वो जाने लगता है। और kindergarten schools में जब वो जाने लगता है तो मैं अपना बैग खुद उठाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप करूंगा, मैं लिखने लगूंगा अपने हाथ से, मैं अपने शूज पहनूंगा, अपनी बॉटल भरूंगा। इस प्रकार से जब वो इनिशिएटिव लेता है किसी भी कार्य को करने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए, जिसे कि पहल कहा जाता है, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट अब वो चेंज्ड है, केवल वो परिवार का ही वातावरण नहीं है, अब जो वातावरण है वो आसपास के पास पड़ोस का वातावरण भी है जिसको वो एक्सप्लोर करने लगता है, और उसके साथ साथ स्कूल का वातावरण जो बिल्कुल नया सा वातावरण है। तो अब जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक वातावरण है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय वातावरण है बालक के लिए। तो उसमें जिस गुण का विकास होता है वो है इनिशिएशन, पहल। यदि वो कुछ इनिशिएशन लेना चाहता है, कुछ कार्य करना चाहता है, नए नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, नई वस्तुओं को छूता है, उन्हें खोल कर देखना चाहता है, उन्हें तोड़ कर देखना चाहता है, और इसके कारण उसे दंड मिलता है या लगातार उसके ऊपर टोका टाकी की जाती है, पनिशमेंट एज वेल एज नैगिंग बाय द पेरेंट्स और द टीचर्स, इट गिव्स राइज टू द गिल्ट फीलिंग इन हिम। और हर उनमें जो अब जो शर्म का भाव है, लज्जाशीलता की जो बात है, उसके बाद जो है गिल्ट फीलिंग कि अब ये मुझसे गलत काम हो गया है, ये भावना जो है वो जन्म लेती है। अगेन, जैसा कि हर स्टेज में 2 तरह के एक्सट्रीम फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक क्राइसिस की सिचुएशन है, संक्रांति की सिचुएशन है। अगर पॉजिटिव फैक्टर्स का रेशियो ज्यादा है, यानी बच्चे को पहल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अपने कार्य स्वयं करने दिया जाता है, उसे उसके जो प्रश्न होते हैं, जो क्यूरियोसिटी है, उसको जो जिज्ञासाएं वो रखता है, उनके उचित समाधान और जवाब यदि दिए जाते हैं तो सक्सेसफुल सॉल्यूशन हो जाता है बिटवीन द क्राइसिस ऑफ इनिशिएटिव एंड गिल्ट। And this gives rise to again a psychosocial power which is called as purpose, उद्देश्य। तो जो दोष भाव है, गिल्ट फीलिंग है, उसका जन्म तब होता है यदि निगेटिव फैक्टर्स ज्यादा हों, यदि बच्चा कोई पहल करने, कोई कार्य करना चाहे और उसमें उसे टोका जाए या उसे कोई दंड दिया जाए, तो उसमें फिर पर्पस या उद्देश्य का भाव जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता।
और ये जो पर्पस, उद्देश्य का जो भाव है, ये फिर उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है किसी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए, जीवन में लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हुए व्यवहार। तो बालक ने जब कोई कार्य किया तो उस कार्य को करने पे यदि उसे प्रोत्साहन मिला तो प्रोत्साहन से अब उसे किसी न किसी उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए बहुत ज्यादा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि मैं जीवन में आगे क्या करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। The next stage, the fourth one, it is from 7 to 12 years of age, and we know this is the later childhood stage. उत्तर बाल्यावस्था है ये। उत्तर बाल्यावस्था में आप ये देखेंगे कि 7 वर्ष की आयु वो होती है जब फॉर्मल स्कूलिंग आरंभ हो जाती है कक्षा 1 के पश्चात। फॉर्मल स्कूलिंग का अर्थ है कि अब उन्हें कुछ अनुशासन में भी रहना है, कक्षा में जाना है तो लाइन बना के जाना है, प्रेयर में खड़े रहना है, तब उन्हें साइलेंट रहना है, अपनी बारी आने पर बोलना है, कक्षा में जब शिक्षक है तब उन्हें शांति बनाए रखनी है, प्रश्न पूछने का समय है तो प्रश्न पूछना है, समय पर होमवर्क करना है, नई नई बातों को सीखना है, और जो शिक्षक समझाता है फिर वो प्रश्न करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इससे बच्चे में श्रम की भावना, फीलिंग ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्स। कि तो श्रम का महत्व क्या होता है, कार्य करने का महत्व क्या होता है, हार्ड वर्क, तो सेल्फ डिसिप्लिन, लॉजिक एज वेल एज हार्ड वर्क। इफ सम आंसर्स आर गिवन टू द चाइल्ड, नाउ दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट, कि आखिर इसके पीछे तर्क क्या है, क्या बात कही गई है, ये तर्क सम्मत क्यों है, ऐसा क्यों, व्हाई वाला जो क्वेश्चन है वो आने लगता है। इसके पहले मूलतः बालक जो प्रश्न पूछते हैं वो केवल क्या के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन क्यों और कैसे के जो प्रश्न हैं वो 7 वर्ष की उम्र के पश्चात पूछे जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक हो जाता है, हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, वो अनुशासन में है, वो तरह तरह के वातावरण के बारे में प्रश्न पूछता है, तो इसके फलस्वरूप यदि उसको पेरेंट्स की तरफ से मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो इससे उसमें श्रम का भाव, हार्ड वर्क का जो भाव है वो और अधिक डेवलप होने लगता है। सो द फीलिंग ऑफ इंडस्ट्री इज डेवलप्ड। इफ इंस्टेड ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स द चाइल्ड इज स्कोल्डेड फॉर मेनी थिंग्स, तुमने गलत लिख दिया, तुमने गलत चित्र बना दिया, तुमने जो कपड़े हैं वो सही तरीके से नहीं पहने हैं, सही स्थान पे नहीं रखे हैं, यदि उन्हें डांट फटकार मिलती है, उन्हें टोका जाता है, तो इससे उनमें हीन भावना आ जाती है। और ये जो हीन भावना है ये फिर उनमें एक प्रकार का साइकोसोशियल एक हम कह सकते हैं कि उनमें वीकनेस आ जाती है। दे फील आई एम इनकॉम्पिटेंट, मैं असमर्थ हूं, मैं अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर सकता। और अगर फेवरेबल रेशियो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में, बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, वो श्रम के महत्व को समझ रहा है, वो हार्डवर्क कर रहा है, उसके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, तो इससे उसमें जो साइको सोशल पावर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉम्पिटेंसी, सामर्थ्यता, सामर्थ्यवान होना, दैट आई एम कॉम्पिटेंट एनफ टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। The feeling of competency develops, which helps in the positive personality development. In the 5th stage, this is the adolescent stage. किशोरावस्था की आयु है ये, which is from 13 years to 20 years. Teens जिसको हम कहेंगे, 13 से लेकर 19 आप देखेंगे सब में टीन एक शब्द आता है। तो ये किशोरावस्था की आयु है। किशोरावस्था क्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मित्र मंडली जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। किशोरों को आप देखेंगे कि उनमें बहुत डिफरेंट इंटरेस्ट जो है वो विकसित होते हैं। उनमें आप दोनों प्रकार के देखेंगे कि अपने सेम सेक्स के और दूसरे सेक्स के जो बालक बालिकाएं हैं, किशोर किशोरियां हैं, उनके प्रति अट्रैक्शन का भाव होता है। वो विभिन्न प्रकार के हॉबी क्लब्स जो हैं या स्पोर्ट्स हैं या एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, व्हेन दे स्टार्ट interacting with more and more people in different environment, they start taking part in different activities, it help them in the self perception, स्वयं के बारे में जानना और समझना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा जीवन में क्या लक्ष्य उद्देश्य है, मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है, समाज की मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, मुझे समाज का एक उत्तरदायी नागरिक जो है वो किस प्रकार से बनना है। ये सब कुछ मदद करते हैं उसको स्वयं की पहचान बनाने में, आइडेंटिटी
आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। और ये जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है ये होता है जितना ज्यादा आपके इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और इसका बिल्कुल अगर हम एक्सट्रीम नेगेटिव अगर पार्ट लें, यदि किशोर किशोरी जो हैं वो अपने जीवन में अपनी भूमिका के विषय में चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि मुझे कौन सी राह चलना है, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, भविष्य के बारे में यदि वो कुछ निश्चित नहीं कर पाते हैं तो वे हमेशा असंशय और भ्रम की स्थिति में रहते हैं, असमंजस उनको बना रहता है। और ये असमंजस और कंफ्यूजन की जो स्टेज है, सो देयर इज अ क्राइसिस बिटवीन आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। मेरे स्व की पहचान क्या है, मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और एक उसके बिल्कुल विपरीत जिन्हें ये नहीं समझ आता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं अपने जीवन से क्या अपेक्षाएं रखता हूं, पथभ्रष्ट जब वो हो जाते हैं। तो इसमें अगर पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा हैं जिसमें कि आइडेंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सोशल पावर डेवलप होती है जिसको कहा जाता है फाइडेलिटी। और फाइडेलिटी है कर्तव्य परायणता, समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में। और अब बाल्यावस्था नहीं है, अब किशोरावस्था है। अब माता पिता भी ये मानते हैं कि वो एक उस उम्र तक पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है। अब वो समाज में सभी लोगों के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो उनमें वो समझ विकसित हो गई है कि वो अपने निर्णयों को स्वयं ले सकें, और उनकी जो जिम्मेदारी इस समाज में है, माता पिता के प्रति या परिवार के प्रति है, या अपने स्वयं के प्रति, अपने जीवन के प्रति है, उसका निर्वहन वो कर सकें। तो कर्तव्य परायणता का जो भाव है वो विकसित होता है। इसके विपरीत अगर निगेटिव फैक्टर्स जो हैं उनका रेशियो ज्यादा है, अनफेवरेबल रेशियो जिसको हम कह सकते हैं, तो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन वाला जो क्राइसिस है उसका कोई सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पाते, उचित समाधान नहीं निकाल पाते हैं। और इसके कारण फिर उनका जो एडजस्टमेंट है अपने आसपास के वातावरण के साथ वो नहीं हो पाता है। जो छठी अवस्था है, जो 6th स्टेज है साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसका एज ग्रुप है 21 to 30 ईयर्स। एडल्टहुड हम इसे कह सकते हैं। ये वो समय है जब आमतौर पे स्कूली और कॉलेज की जो शिक्षा है, या तो उसमें वो अध्ययनरत रहते हैं कॉलेज की शिक्षा में किसी प्रोफेशनल कोर्स को करने में, या अपने व्यवसाय और भावी जीवन के प्रति वो बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं और उसके बाद किसी भी व्यवसाय को चुनकर और उसमें कार्य करने लगते हैं। अब क्योंकि वे मैच्योर हैं, उनमें समझदारी जो है वो विकसित हो गई है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हैं, तो परिवारजनों के प्रति, मित्रों के प्रति, जिस संगठन में वो कार्य कर रहे हो उन कुलीग्स के प्रति, एज वेल एज द प्रोफेशन, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, देयर कुलीग्स एंड द प्रोफेशन, एवरीवेयर दे ट्राई टू डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप, घनिष्ठ मित्रता स्थापित करते हैं। वो जितनी घनिष्ठ मित्रता होगी, जितनी सकारात्मक घनिष्ठता होगी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप मेरी मदद करें, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, आप मुझ पर विश्वास करें, ये उन्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। एंड द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी। But we have seen some extreme negative cases too. There are some cases when the individual does not know what he is expecting from the society. He does not want to develop intimate relationship with the family, with the friends, with the colleagues, and is not very passionate about the profession he is working in. In such cases, we see that neither he is helping others nor is interested in taking help of others. So it leads to being alone. तो आइसोलेशन एंड सोशली अलोननेस जो है, आप इस प्रकार के संवेगात्मक विकास को देखते हैं, इस प्रकार के सामाजिक विकास नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। नाउ द क्राइसिस इज बिटवीन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। दिस क्राइसिस, इफ पॉजिटिव फैक्टर्स आर मोर, if the individual is capable of developing intimate relationship, then the favorable positive ratio helps in solving the crisis and a psychosocial power is developed which is called as love, प्रेम, प्यार की अनुभूति।
और ये प्रेम और प्यार की जो अनुभूति होती है ये उनकी पर्सनालिटी को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करती है. एंड इट इज ऑल्सो शोन इन द बिहेवियर व्हेन दे रिस्पेक्ट अदर्स, व्हेन दे ऑनर द पीपल, व्हेन दे ऑनर द प्रोफेशन, व्हेन दे ऑनर द वर्क ऑफ अदर्स. दे अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी performed in a positive way, as well as honesty, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, इन सब का जन्म होता है जब प्रेम का भाव उत्पन्न होता है. तो जब तक हम किसी को समझते नहीं हैं, उनके साथ संबंध घनिष्ठ स्थापित नहीं करते हैं, तब तक उनकी कमजोरियों को, उनकी परेशानियों को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी आवश्यकताओं को हम नहीं समझ सकते. और जब घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं तो हम एक दूसरे की कमियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, और जो हमारे प्लस पॉइंट हैं, जो हमारे जो हमें पावर्स हैं, जो हम ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनको हम समझने भी लगते हैं, फिर उनको हम यूटिलाइज भी करते हैं, हम उनको ऑनर भी करने लगते हैं. Okay, so these intimate relationships, they lead to the psychosocial power of love, which helps in the development of a more positive personality. The next seventh stage, in the seventh stage, the age group is from 31 to 65 years. 31 साल की उम्र से अमूमन हम देखते हैं कि अपने जॉब में सेटल हो जाते हैं. तब तक इंडिविजुअल्स, जो भी व्यक्ति जो पढ़ाई उनको करनी होती है उसको वो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज ले चुके होते हैं, कार्य करते हुए भी उनको करीब 4-5 साल से अधिक हो जाते हैं. और अगर हम 65 इयर्स तक की एज ग्रुप देखें तो ये वो एज है जिसमें एक इंडिविजुअल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. और ये प्रोडक्टिविटी जो है वो हर फील्ड में देखी जाएगी. उनकी पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हो कि वो विवाह संबंध स्थापित करते हैं और संतान को जन्म देते हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, संतानोत्पत्ति, आगे जीवन आगे बढ़ाना और अपने फैमिली वालों का देखभाल करना. ओके, तो हमें जो जेनरेटिविटी है, उत्पादकता जो है, वो एक तो फैमिली लाइफ में देखने को मिलती है. उसके अलावा जहां आप कार्य कर रहे होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस संगठन के साथ, वहां भी आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, एफर्ट्स आप लगाते हैं, क्योंकि आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं. यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन फॉर विच यू आर वर्किंग. तो इट इज अ वेरी प्रोडक्टिव फेज. And when you are productive, you are earning, you are feeling satisfaction, you feel giving back to the society. Now you feel responsible for the growth of the society. तो एक जो भाव जन्म लेता है जिसको हम कहते हैं उत्पादकता, और ये जो उत्पादकता का भाव है वो जेनरेटिविटी हम कह सकते हैं. तो अगर जेनरेटिविटी का भाव जन्म लेता है, ये संवेग जब जन्म लेता है, तो इससे दूसरों का भी विकास हो, दूसरे भी जीवन में आगे बढ़ सकें, समाज में सबका भला हो, जो लोग समाज में कमतर हैं उनके फायदे के लिए क्या किया जा सकता है. तो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य जो हैं वो व्यक्ति करते हैं समाज की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और उनकी देखभाल के लिए भी. तो केयर ऑफ अदर्स, दूसरों की देखभाल करना. लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाया है पहली स्टेजेस में, यदि हम देखते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि उनमें सेल्फ सेंटर्डनेस का भाव, अपनी तरफ ही ध्यान देना, अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति करना, अपनी ही देखभाल करना, सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता जब उनमें आ जाती है, केवल स्वयं के प्रति जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का अनुभव करते हैं, तो ये उनके जीवन में ठहराव, स्टैग्नेशन ला देता है. यू आर नॉट इंटरैक्टिंग विद अदर्स, you are not adding anything to the profession you are working, you are not giving back anything to the society, it leads to stagnation. ये ठहराव की स्थिति होती है. हम सभी जानते हैं कि नदी का पानी जो है वो बहता रहता है, और बहते पानी में हमेशा ताजा पानी जो है वो आता रहता है. तो नए आइडियाज, नए थॉट प्रोसेस, नए संबंध सब कुछ बनते रहते हैं. लेकिन यदि आप केवल अपने बारे में ही सोचते हैं तो आपके जीवन में ठहराव आ जाता है. और जैसे हम जानते हैं कि यदि तालाब का पानी है, ठहरा हुआ पानी है, तो फिर उसमें आपको कई प्रकार के दुर्गुण और दोष और कमियां भी दिखाई देती हैं. स्टैग्नेंट अगर कोई व्यक्ति हो जाए, वो जीवन में आगे ना बढ़े, दूसरों के साथ संबंध स्थापित ना करे, दूसरों की मदद ना करे, एक दूसरे के साथ चल के अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य न करे, अपने समाज में जो लोग हैं, वो लोग स्पेशली जो कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिकली पुअर की भी हम बात कर सकते हैं, उनके लिए यदि कोई कार्य न करें तो उनमें कोई ऐसा भाव ही नहीं विकसित होता कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं. तो दिस लीड्स टू स्टैग्नेशन.
तो in the seventh stage of psychosocial development, there is a psychosocial crisis between generativity versus stagnation. If the individual is able to solve the crisis, the right solution of the crisis leads to the psychosocial power of care. देखभाल का भाव. We care for each other. I care, you care, we all should care for each other. वो भाव जो है, वो जो विकसित होता है, ये एक साइकोसोशल पावर बहुत स्ट्रांग होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को शेप अप करने के लिए, सही व्यक्तित्व के निर्माण के लिए. अब अंतिम स्टेज की बात हम करें तो 65 years of age till death. 65 वर्ष अमूमन वो आयु होती है जिसमें व्यक्ति रिटायर हो जाता है. आज के संदर्भ में यदि हम बात करें, पहले ये कई जगह 60 भी थी, अभी भी कई जगह 60 है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे 58 इयर्स भी है. अलग अलग काइंड के वर्क प्लेसेस जो है वहां पर अलग अलग रिटायरमेंट की एज देखते हैं. तो जो मेन प्रोडक्टिविटी वाला समय था वो बीत चुका है इससे पहले. 65 इयर्स है, ये एक ऐसी उम्र होती है जहां शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी व्यक्ति अपने आप को थका हुआ सा महसूस करता है. बहुत नए आइडियाज जो हैं वो आने अब उतनी तीव्र गति से उसको नहीं आते हैं. तो जब वो रिटायर हो गया है, अब उसका सोशल इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ वो भी कम हो गया है. तो अब व्यक्ति भविष्य की ओर नहीं देखता, बल्कि वो अपने बीते हुए जीवन की ओर देखता है. एंड व्हेन दे लुक टुवर्ड्स देयर पास्ट, दे स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन. दे स्टार्ट इवैल्यूएटिंग द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव लेड, whether they have helped others, whether they have achieved something in their life. They start critically analyzing it. And if their evaluation is positive, that yes, I have done something fruitful for myself, my family and the society. I have given back to the society what I have received. मेरे किए गए कार्यों से कईयों का मैंने भला किया है, समाज को उससे फायदा हुआ है, एक नेशन को फायदा हुआ है, मेरे ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने अपना 100% दिया है. तो जब वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है अपनी पास्ट लाइफ को, और जब वो उसमें सक्सेस को अगर देखता है, तो वो अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करता है कि मेरा जीवन पूर्णता से भरा हुआ था. I have given 100% to the family, to the society, to the organization. या satisfaction 100% हम ना भी कहें तो एक satisfaction का भाव होता है. लेकिन उसी के साथ हम साथ में जब दूसरी अगर हम चर्चाएं करें तो उसमें हम देखते हैं कि अगर वो नेगेटिवली इवैल्यूएट करते हैं लाइफ को, तो ये जो नेगेटिव इवैल्यूएशन होता है वो उनमें निराशा के भाव को जन्म देता है कि मैंने जीवन में जो करना था वो नहीं किया, मेरे किए गए कई कार्यों से दूसरों को बहुत कष्ट हुआ, नुकसान हुआ. मेरे पास जब समय था, मेरे पास जब सामर्थ्य थी, मेरे पास जब पैसा था, जब मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था, तब जिन कार्यों को मैं कर सकता था उन कार्यों में मैंने अपना संपूर्ण जो है वो नहीं दिया. तो वो अपने आप को बहुत कमजोर, असहाय और निसहाय सा महसूस करता है कि अब मैं जीवन में कुछ और जो है वो नहीं कर पा रहा हूं. तो ये क्राइसिस जो है, इट इज बिटवीन इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, संपूर्णता बनाम निराशा. और ये जो साइकोसोशल क्राइसिस है, इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा है या नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा है. अगर पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा हैं तो ये राइट सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हैं इस क्राइसिस वाली सिचुएशन का. और इसके फलस्वरूप जिस मनोसामाजिक शक्ति का या जिस मनोसामाजिक गुण का विकास होता है व्यक्तित्व में, उसे कहा जाता है मैच्योरेशन, परिपक्वता. अब वो परिपक्वता का अनुभव करते हैं, मेरा जीवन पूर्ण है, मेरा जीवन परिपक्व है, मैं जिन कार्यों को कर सकता था उनको मैंने 100% ईमानदारी के साथ किया है. मैंने इस समाज के उत्थान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोफेशन के लिए अपना संपूर्ण दिया है. तो ये भाव विकसित होता है उनमें, मैच्योरेशन. इन 8 स्टेजेस के बाद हम चर्चा करें कि आखिर एरिक्सन ने जो ये मनोसामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, हाउ दे कैन बी यूज्ड एंड अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. So we were talking about the different social needs of an individual in the different stages. We were talking that students have varied interests, so it is very, very essential for the teachers to give opportunities to students in their field of interest. अगर उनकी रुचि का क्षेत्र होगा तो वो इनिशिएटिव लेंगे, वो पहलकदमी करेंगे और वो बहुत रुचिपूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रम के साथ उस क्षेत्र में कार्य करने को तत्पर होंगे.
Now we all see that students are very much interested in exploring the environment in their formative years. अपनी शुरुआती वर्षों में वो पूरे आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो we should give them more and more opportunities to explore the environment and learn themselves. If students are taking initiative, encouragement should be given to students. And if a teacher tries, he or she can try to facilitate with the help of environment in the development of imagination power of children, social and emotional development, which are very much essential for the healthy personality development. Students should be given chances to work hard so that the development of the feeling of industry and feeling of responsibility is developed in them. If the students are very curious, they want to know something, there are many questions they are asking, they should be satisfied. The answers should be given by the teachers to fulfill their curiosity. And students should be inspired enough for doing different kind of productive works. ऐसे कार्य जिनसे आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने क्या सीखा, आपने क्या निर्माण किया. तो इसमें बात क्रिएटिविटी की भी है, सृजनात्मकता की भी है और प्रोडक्टिविटी की भी है, उत्पादकता की भी है. और जब वे श्रम करेंगे, जब वे अपने आप सीखेंगे, जब वे वातावरण को एक्सप्लोर करेंगे और वो कुछ प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. They would be able to self-analyze what has been our contribution to our own development and the development of the society. We as teachers should give them more and more opportunities to face the different challenges of life. We should prepare them by developing different kinds of skills in them, so they never feel let down. अपने आप को वीक महसूस ना विद्यार्थी करें कि ये बड़ा मेरे सामने बाधा आ गई है, समस्या आ गई है, तो मैं इससे पार कैसे कर पाऊं. We should make them ready to face challenges and overcome them. जैसा भी वातावरण है, जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होता चला जा रहा है, उस परिवर्तित वातावरण के साथ हमें समायोजन कैसे करना है, उसके लिए हमें उनको सामर्थ्यवान बनाना होगा. We should help them to develop competency in them, so that they never feel weak. In this particular theory of psychosocial development, Erikson has also given inspiration and motivation to teachers to know their own identity. Until and unless a teacher believes in himself or herself, he can self-identify himself. अगर वो स्वयं का आकलन नहीं कर सकता, अगर उसकी स्वयं की एक पहचान नहीं है, तो वो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में योगदान नहीं दे सकता. Teachers should believe in students. Teachers should let the students work freely. Teachers should direct them for a goal-oriented behavior. A teacher needs to be optimistic. शिक्षक को ये नहीं सोचना है कि मेरे विद्यार्थियों से कुछ नहीं हो सकता. जब वो ये विश्वास करेगा, वो आशावादी होगा कि विद्यार्थी सीख सकते हैं, नया जान सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो ये ऑप्टिमिस्टिक नेचर जो है, ये विश्वास जो विद्यार्थियों के प्रति है, वही उसमें प्रेम के भाव को विकसित करने में मदद करेगा. और जहां प्रेम का भाव होता है, इच्छा शक्ति होती है, विश्वास होता है, वही कॉम्पिटेंस जो होता है वही डेवलप होता है. और शिक्षक को प्रयास करना है कि वो विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करे. तो इस प्रकार से एरिक्सन ने अपनी जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की थियरी दी है, उसमें उन्होंने एडोलेसेंट स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, और उन्होंने कहा है कि हर स्टेज में जो क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस से उबरा जा सकता है, और हर क्राइसिस से उबरने में जो हमारी मदद करता है वो एक मनोसामाजिक पावर है, एक साइकोसोशल पावर है. विच साइकोसोशल पावर हेल्प्स इन द राइट काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, विच हेल्प्स अस इन एडजस्टिंग टू द एनवायरमेंट इन अ पॉजिटिव वे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.